हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का जो है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जो कि आज हम करेंगे चैप्टर 4, जिसमें हम मॉडर्न वर्ल्ड 2 यानी चौथा चैप्टर जो है आधुनिक विश्व 2 है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये टॉपिक हर एक क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई के बच्चे हों, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, यूपी बोर्ड के बच्चे हों, बिहार बोर्ड के बच्चे हों, या जो भी बोर्ड के बच्चे हों, सभी के लिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण रहेगा। इवन कि जो बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक रहने वाला है। इसमें हम हर एक जो बातों पर जो है प्रकाश डालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे। लेकिन ये सब तब होगा जब वीडियो स्टार्ट होगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसे आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today we will discuss most important chapter here, Modern World 2. There is a most important chapter, a Modern World 2. But first topic is the most important arrive here, Industrial Revolution. The Industrial Revolution, there is the most important topic here. In the 18th century, come to Industrial Revolution. 18th century, there is a maximum here is a, see here, Industrial Revolution. It's about social and economical change that market the transition from a stable agriculture and commercially society to a modern industrial society. Historically, it is referred to be a period of British history from 1750 to 1850. There is a most important is 100 years a time. 1750 to 1850 means 100 is gap year. And dramatic change in the social and the economical structure took the place in invention and new technology create the factory system of large scale machine production and great economical specialization. The population which was employed in the agriculture now are gathered in urban factories. Do you know why this is happened? Earlier, the merchants supplied their family with the raw materials and collected the finished products. This system did not meet the growing demand of market for a long. So, by the end of the 18th century, reached a merchant's set of factories. They installed new machineries, bought the raw material and employed workers on a fixed wages to make a machine-made goods. Thus, the factory system was born. On this period of time, there is a 100 years gap, 1750 to 1850. There is a 100 is the most important for the industrial revolution. Here show the most important machine, the LL spinning machine. There is a LL spinning machine. There is the most important on this period of time. The Industrial Revolution started in Britain with the use of steam power. There are Industrial Revolution started in Britain. The use of the steam power. Steam power on this period of time, that is the most important for the Industrial Revolution. And this was made possible with the invention of the steam engine by James Watt. James Watt is the discoverer of steam engine. There is a most important question for UPSC exam and other competitive exam. James Watt is a 1769. Their invention of steam engine
And in there is a 9733, John Cash is an invent to the flying sword, which is simplify their process of weaving cloth and which is increasing the output for a time. There is also important. 1733, the John Cash invented to the flying shuttle. That is important. And James Harwells invented a hand power spinning wheels is a hand power spinning wheel. The spinning chance to be create multiple spool of the thread at the once. After the invention of the spinning gems, cotton textile become their key of industry of this period. There is a most important invention on this period time. The presence of large quantity of coal, iron, proved to the decisive to the factor in the Britain's as rapidly industrial development. The buildings of the canal and road, as well as the advent of the is a railroad and steam ship. And when to the market of manufactured goods and new period of development come with the electricity and gas line engine. That is the most important for the industrial revolution. The electricity and gas line engine. Britain had all our resources that were needed to make here on industrialized power. The Britain had all the resources that were needed to be make here industrialized power by 1850. 1815, there is the most important period time. The revolution had been accomplished with the industry to become a dominant factory in a British life. The effect of the Industrial Revolution was felt worldwide, and France after the 1830, and Germany after 1850, and the USA after the Civil War soon started to industrialization. There is the important. The effect of Industrial Revolution was felt on is worldwide. The France, Germany, and the USA. There is a start of industrialization. Let us refer about further how to industrialization was achieved. The major invention and the reform give a boost to the agriculture in England. And important innovations took place in the farming such as a Jethro tools as a seed planting and drill which is added in a planting seed at a uniform interval and the depth without any wastage. There is a without any wastage. Between 1760 to 1830, the British Parliament passed a near 1000 enclosure act by which there is a land and which had earlier is belonged to be communities were combined with a large area. Thus, there all this helped to be increasing agricultural production, but at the same time rendered as a large number of people landless. Now only a few people were need to work on the farm, so a large number of people started to migrate to city for employment. And this is a provide cheap and abundant labor to work in the factories. That is important. And here, the favorable political condition in England further help in their growth of the industrial revolution. Act like the removal of trade barrier and common market and added to the merchant. England was able to capture the overseas is a market is a primarily with the development in a transportation. Many European countries had by now started following the policy of mercantilism. Under this policy, governmental control was exercised over to industries and trade, and it was based on theory that national strength was indicated by the more export and the less import. That is the most important point here. This theory also believed that wealth of nation and depend on the posing of the gold and silver and the governmental interference in a trade should be a very limited. And what factor do you think made it is possible for England to be a first country to be industrialized? England enjoy a geographically advantage over the country. There is the important. There is England enjoy a
geographical advantage over the countries, and it had a square as a land location with the easy promised by to sea, but at the same time it was isolated from the rest of Europe, and hence is a progress unhindered. And the waterways like canal, river, and sea helped England to have their large free trade area and without tolls and barrier. This is also important. Without tolls and barriers, England enjoyed to the trade. This advantage made England a favorable location for the Industrial Revolution. You know that this time England is a favorable location of the Industrial Revolution. यह बात पुण्य सत्य है कि किसी भी देश की प्रगति में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हाथ होता है तो वो होता है उद्योग का। कहते हैं जिस देश में उद्योग लगे हुए हैं वो देश जो है हमेशा विकसित रहा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं जिस देशों में जो है उद्योग नहीं लगाए गए हैं वो सदैव पिछड़ा हुआ ही रहा है। इवन कि अगर राज्य की भी बात करेंगे तो राज्य तभी पिछड़ जाता है जब वहाँ पर कोई उद्योग नहीं होता है, और ये बात सभी देश जानते हैं और सभी क्षेत्रों में ये बात का जो है अनुसरण भी किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम आज बात करने जा रहे हैं, चैप्टर जो हमारे समक्ष आया है, कहते हैं विश्व आधुनिक विश्व, यानी विश्व जो है आधुनिक विश्व के रूप में जो है दूसरा पाठ हम करने जा रहे हैं, यानी देखा जाए तो आधुनिक विश्व 2। और इसमें आज जो हम टॉपिक करेंगे वो रहेगा औद्योगिक क्रांति। कहते हैं औद्योगिक क्रांति से कोई भी देश डेवलपमेंट हो सकता है, और औद्योगिक क्रांति के कारण ही कोई देश जो है दूसरे देशों को जो है अपने अधिकार में ले सकता है। इवन कि आपको पता ही होगा कि ब्रिटिश ने जो है हमारे देश पे 250 साल जो राज किया वो किन्हीं कारण हो सकते हैं इसमें औद्योगिक क्रांति ही थी, क्योंकि हमारे देश से कच्चे माल को ले जाना और अपने देश से जो है वही चीज़ को मैन्युफैक्चर करके हमारे देश में बेचना, तो यही तो जो है औद्योगिक क्रांति हुआ। और ये क्रांति जो है हमें गुलाम बनाने के लिए पर्याप्त था। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक आज आया है औद्योगिक क्रांति। कहते हैं औद्योगिक क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण उस समय था नए चीज़ों की खोज। कहते हैं नए नए आविष्कार जो हुई इसने इंसानों की सोच को ही बदल के रख दिया, और जो चीज़ें बहुत मुश्किल से और दुष्कर्म कार्य से होते थे वो मशीनों ने बहुत सरल और सहज बना दिया, जिसको हम औद्योगिक क्रांति का नाम दिए। और इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हाथ था मशीनों की खोज, और दूसरी बात थी कहते हैं बिजली की खोज, और उससे भी महत्वपूर्ण बात थी जो यहाँ जो है भाप का इंजन का जो है इस समय काल में आविष्कार हुआ। तो ये सारे बात पे हम प्रकाश डालेंगे और हर एक पहलू पे जो है हम चर्चा करेंगे। आपको जो है पूरा वीडियो देखना चाहिए। त्रिपान स्टडी सेंटर यही बात कहता है, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक रहती है। अगर आपको पूरा टॉपिक समझना है तो पूरा चैप्टर को अंडरस्टैंड कीजिए और देखिए आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा कि नहीं। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चेतावनी ये भी होती है कि अगर आप कभी भी वीडियो देखते हो तो शांत मन से देखिए और शांत इलाकों में देखिए। इससे क्या होता है कि जो भी मैं बोलूँगा वो पर्याप्त मात्रा में आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर आप शोर शराबा में सुनिएगा, ठीक है, और आपका दिमाग कहीं और रहेगा तो ये समझता है कि आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। और ये मैं भी जानता हूँ, ये आप भली भांति समझते हो। तो चलिए अधिक बातें ना करके हम देखते हैं औद्योगिक क्रांति के ऊपर कि किन किनों ने आविष्कार किया और किनका जो है महत्वपूर्ण योगदान था इस क्षेत्र में। तो कहते हैं औद्योगिक क्रांति की अगर बात करें तो कहते हैं 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति हुई। तो ये बहुत साफ बात यहाँ गया कि 18वीं शताब्दी में जो है औद्योगिक क्रांति हुई और इससे सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन देखने को मिला। तो जनरल सी बात है कोई क्रांति होगी तो समाज और आर्थिक परिवर्तन तो होना स्वाभाविक बना देता है। और यह बदलाव एक अस्थायी कृषि और व्यापारिक समाज के आधुनिक औद्योगिक समाज बनने के चिंतित भी करता है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति हुआ तो इससे व्यापारी समाज आधुनिक औद्योग समाज बनने को ही काफ़ी अग्रसर हुआ। ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो 1750 से लेकर 1850 अवधि ब्रिटेन के इतिहास संदर्भ में है। यानी देखा जाए ये 100 साल के जो समय काल थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी औद्योगिक क्रांति के लिए, क्योंकि 1750 से लेकर 1850 में वो समय काल था जहां पर ब्रिटिश की इतिहास को ही बदल गया और सामाजिक और आर्थिक ढांचों में आए नाटकीय परिवर्तन ने
इसका स्थल जो है आविष्कार के रूप में जगह आविष्कार और नई तकनीक द्वारा मशीन को तैयार बड़े पैमाने के उत्पादन की फैक्ट्री व्यवस्था और वित्तीय आर्थिक विविधता ने ले ली। कहते हैं जो जनसंख्या पहले कृषि कार्य करती थी अब जो है शहरी कारखानों की ओर बढ़ने लगी, क्योंकि आपको ये बात भली भांति नॉलेज है कि गांव में जितने व्यक्ति रहते थे वो सारे के सारे जो होते थे कृषि आधारित जो है कार्य करते थे। लेकिन जैसे ही कारखानों का और औद्योगिक क्रांति हुई वो शहरों की तरफ पलायन कर गए, क्योंकि कहते हैं औद्योगिक जो भी लगाई गई सब शहरों में ही लगाई गई। तो जनरल सी बात है, लोग जो माइग्रेशन करेंगे प्रवास करेंगे वो शहरों की तरफ ही करेंगे। और मान लीजिए वही उद्योग अगर गांव में लगा दिया जाता तो जो इतनी जनसंख्या में पलायन हुआ है, जो माइग्रेशन हुई है, शायद नहीं होती। तो ये बात शायद सरकार को ये भली भांति समझ में कभी नहीं आएगी, और जब आएगी तो बहुत देर हो चुका होगा। और ये आपने देखा भी होगा कि गांव में जनसंख्या बहुत कम होती है और शहरों में जो है एक ही क्षेत्र में अधिक जनसंख्या होती है। तो कारण कहीं ना कहीं यही बनता है औद्योगिक क्रांति। पहले के व्यापारी परिवारों को कच्चा माल देते थे और उसे तैयार उत्पादन एकत्र भी किया जाता था, यानी कच्चे माल दे के तैयार माल जो है एकत्र वो लोग करते थे। और यही नीति इंग्लैंड ने जो है यूज़ किया, यानी ब्रिटिश जो भारत में जो अपना कॉलोनिज्म बनाया तो उन्होंने भी यही काम किया। भारत से कच्चे माल ले जाके अपने देश में उसको जो है तैयार माल करके भारत से ही व्यापार करते थे, और जो चीज़ें इनको यहाँ सस्ती मिलती थी वही जो है जब आती थी भारत में बन के तो 3 गुना कीमत जो है इसके वसूला करते थे। तो इस तरह जो है उन्होंने भारत को कॉलोनिज्म बनाने में सक्षम हुए, और इस व्यवस्था से बाजार की बढ़ती मांगों के लंबे समय तक पूरा नहीं किया जा सकता था। क्योंकि आपको पता है कोई सामान अगर मार्केट में आती अगर हाथों से बनी होती थी तो इसे पूरा मार्केट को जो है पूरा करना संभव नहीं था, और इसकी जगह कुछ ऐसा आविष्कार करना था कि चंद मिनटों में जो है लाखों के सामान जो है बना दे। और यही हुआ, इसी को तो हम औद्योगिक क्रांति का नाम दिए हैं। इसलिए जो है 18वीं सदी के अंत तक अमीर व्यापारी द्वारा कारखानों की स्थापना की गई। देखा जाए तो यहाँ पर गलत वर्ड है, 8वीं सदी लिखा हुआ है, लेकिन 8वीं सदी तो हम पहुँचे भी गए भी नहीं है, हमारा तो 18वीं सदी है। यहाँ 18वीं सदी के अंत तक जो है अमीर व्यापारी के द्वारा कारखानों की स्थापना की गई और उन्होंने नई मशीन लगाई, कच्चे माल से और निश्चित वेतन पर काम करने वाले श्रमिक मशीनों में बनी वस्तु बनवाई। तो श्रमिकों का उन्होंने बेवकूफ़ी बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया और मशीनों के द्वारा जो है वस्तुओं को बनवाया, और इस प्रकार जो है कारखाना प्रणाली का जन्म हुआ। तो कहते हैं कारखाना प्रणाली का जो जन्म था काफ़ी महत्वपूर्ण था, और ये सब 18वीं सदी में हुई, जो कि महत्वपूर्ण समय काल था। अब इस बात को समझने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ शुरुआती स्पिनिंग मशीन है। आज बेशक इसमें बहुत चीज़ बदलाव हो चुकी है, लेकिन जब ये बनी थी तो देखिए किस प्रकार जो था उसमें 18वीं शताब्दी में बनाई गई, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था उद्योग के लिए, और इन्हीं चीज़ों के कारण जो है क्रांति आई उद्योग में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण मशीन थी उस समय काल के अंतर्गत। कहते हैं औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन में भाप की शक्ति के उपयोग से शुरू हुई, यानी भाप पावर जो था, यानी स्टीम पावर। स्टीम पावर ने वो सब कुछ करके दिखा दिया जो उस समय संभव नहीं था, लेकिन वो संभव हो गई। और हुआ कैसे? ये था बहुत से लोगों की अपनी सोच, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो था हाथ था वो था जेम्स वाट का। जेम्स वाट जो थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण इस बात पे जोर लगाया और भाप की शक्तियों को पहचाना, यानी स्टीम पावर को उन्होंने पहचाना, और उन्होंने इसका जो है उपयोग के विचार विमर्श से उन्होंने जो है एक नई मशीन का आविष्कार कर दिया। क्योंकि कहते हैं आवश्यकता जो होती है बहुत चीज़ों की जननी होती है, यानी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ बना दी, क्योंकि भाप के बारे में सबको नॉलेज था, लेकिन किसी ने ये बात नहीं सोचा था कि इससे जो है इंजन का भी आविष्कार की जा सकती है और बड़े बड़े मशीनों को भी ऑपरेट की जा सकती है। लेकिन ये बात जो है 1769 में जेम्स वाट को समझ में आई, और जेम्स वाट ने भाप इंजन के आविष्कार के बाद ये संभव किया, यानी भाप का इंजन जो है जेम्स वाट ने जो है शुभ आरंभ किया। और 1733 में जॉन कैलस ने उड़ती तुरी का आविष्कार किया, जिसे कपड़े बुनने की प्रक्रिया को आसान कर दिया
और उत्पादन 4 गुना बढ़ा दिया। तो देखिए ये काफ़ी जो है यूपीएससी एग्ज़ाम के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हो सब में पूछे जाते हैं कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया, उड़ती तुरी का आविष्कार किसने किया, और भी बहुत से हैं, चरखा, स्पिनिंग जोन के आविष्कार किसने किया, बहुत से हैं। तो ये सारे क्वेश्चन यहीं पे है और आंसर भी इसका यही है। तो ये महत्वपूर्ण रहा ना आपके लिए। देखा जाए तो यहाँ पर आविष्कारों की जो थी उस समय दौड़ सी लग गई। 1733 में जो आविष्कार जेम्स वॉट ने जो है करके दिखाया था उसका जो है 1733 से स्टार्ट हुआ। 1733 में जो है इसका शुभ आरंभ जॉन केलस ने उड़ती तुरी का आविष्कार करके किया। तब जाके जेम्स वॉट ने भी अपना दिमाग लगाई और नई चीज़ को जो है खोज करके दिखा दिया और जैसे कपड़े बुनने की प्रक्रिया आसान कर दिया। यानी कहते उड़ती तुरी जो थी वो इतनी सक्षम थी कि कपड़े बुनने की प्रक्रिया बहुत ही सरल और आसान कर दिया। कहते उत्पादन 4 गुना इससे बढ़ गई। आप समझ सकते हो कि उत्पादन 4 गुना बढ़ने का मतलब बहुत महत्वपूर्ण बात की ओर इशारा कर रहा है। देखा जाए तो जेम्स हरग्रीव्स ने एक हाथ संचलित चरखा का निर्माण किया। देखिए जेम्स हरग्रीव्स ने उसके बाद काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने एक हाथ संचलित चरखा और स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया और ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इस स्पिनिंग जेनी यानी कताई चरखे से एक बार में ये कई गुना धागे बनने लग गए। अब सोचिएगा कि जेम्स हरग्रीव्स ने जो हाथ का चरखा बनाया वो किस प्रकार का था। तो आप महात्मा गांधी जी का आपको पता ही है कि वो भी चरखा से सूत बनाया करते थे और अपना कपड़ा स्वयं ही निर्माण करते थे। तो आप समझ में आ गया होगा कि जेम्स हरग्रीव्स ने जो चरखा बनाया उसका महात्मा गांधी जी ने भी उपयोग भली भांति किया और उन्होंने जो है स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने ये बात साफ कर दिया कि हमें अपने बनाए हुए हाथों से ही जो है कपड़ों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और आपको पता है उन्होंने जो है विदेशी कपड़े का जो है बहिष्कार भी किया था क्योंकि ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ता चला जा रहा था। तो यही बात महात्मा गांधी जी ने भी जो है बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया था और ये संदेश तब संभव हुआ जब जेम्स हरग्रीव्स ने जो है हाथों संचालित होने वाले चरखा का स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया और इस स्पिनिंग जेनी कताई चरखे में एक बार में कई गुना धागे बनने लग गए। कताई चरखा स्पिनिंग जेनी के आविष्कार के बाद कहते हैं सूती वस्त्र इस अवधि का प्रमुख उद्योग बन गया। ठीक है, यहाँ पर वर्ड गलत लिखा हुआ है, सती लिखा हुआ है जो गलत है। यहाँ पर सूती वस्त्र है क्योंकि सूती वस्त्र इस अवधि का प्रमुख उद्योग बन गया और काफ़ी महत्वपूर्ण भी था। कोयले और लोहे की बड़ी मात्रा में जो है उपस्थित ब्रिटेन के तेज़ी से औद्योगिक विकास में एक जो है निर्णायक कारक साबित हुआ क्योंकि इससे क्या हुआ, एक पूरे ही ब्रिटेन को ही बदल के रख दिया। नहरों और सड़कों के निर्माण और इसी तरह से जो है रेल और जहाज़ के आगमन थे। निर्मित वस्तुओं के लिए बाजार को काफ़ी फैला दिया गया और पेट्रोल इंजन और बिजली के साथ विकास का नया काल भी शुभ आरंभ हुआ। कहते हैं पेट्रोल और बिजली का जो आविष्कार हुआ इससे पूरी जो है अर्थव्यवस्था का रूप रंग ही चेंज कर दिया और इसके पास वे सभी साधन थे जो उसे एक औद्योगिक शक्ति बना सकते थे। औद्योगिक क्रांति का असर दुनिया भर में महसूस किया गया। यानी दुनिया में हर एक व्यक्ति जो है ये महसूस किया क्योंकि ये औद्योगिक क्रांति काफ़ी महत्वपूर्ण थी। 1850 से क्रांति ब्रिटिश जिंदगी में एक प्रमुख कारक बने और औद्योगिक के साथ पूरा भी किया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। 1830 के बाद में फ्रांस के बाद 1850 जर्मनी। तो कहते हैं ये सुबह आरंभ जो हुई एक रिदम से चलने लगी। 1830 में फ्रांस में हुई, 1850 में जर्मनी में हुई और गृह युद्ध के बाद अमेरिका में भी औद्योगिक क्रांति शुरुआत हो गई। यानी गृह युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका ने भी औद्योगिक क्रांति के जो है कदम आगे बढ़ाया। हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे औद्योगिक क्रांति हासिल हुआ। तो आपको इसी साथ लिए त्रिपान सेंटर बने रहना पड़ेगा। कहते हैं प्रमुख आविष्कार और सुधारों ने इंग्लैंड की कृषि को काफ़ी बढ़ावा दिया। यानी प्रमुख आविष्कार और सुधारों ने इंग्लैंड में कृषि को काफ़ी बढ़ावा दिया और कहते हैं महत्वपूर्ण परिवर्तनों ने नव विचारों जेम्स टूरब्रिज और ओपन ड्रिल ने बीजों के समान अंतराल और गहराई पे बिना बर्बाद किए बीज बोने में कृषि में अपनी जगह बना ली। यानी देखा जाए तो कृषि में भी इस समय काफ़ी जो है प्रगति हुई
और 1760 से 1830 के बीच ब्रिटिश संसद ने लगभग 1000 संकलन अधिनियम के द्वारा भूमि के जो पहले उस जिस समुदाय की थी उनके बड़े क्षेत्रों से जोड़ दिया गया। तो ये भी उस समय काफ़ी महत्वपूर्ण थी। हालांकि इन सब से लिए कुछ जो है उत्पादन बढ़ने में काफ़ी मदद मिला। इससे उत्पादन तो बेशक कृषि में काफ़ी बढ़ी, लेकिन उसकी इस समय इतने भूमिहीन लोगों की एक बड़ी संख्या प्रदान की। देखिए, सरकार की यहाँ नीति अलग थी। सरकार ने क्या किया, सारे ज़मीनों पर अधिग्रहण कर लिया और इसके वजह से क्या हुआ, बहुत से लोग जो थे भूमिहीन हो गई और कहते भूमिहीन लोगों की संख्या बहुत ही बढ़ गई। अब केवल कुछ ही लोगों के खेत पर काम करने की ज़रूरत थी, इसलिए कि एक बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन शुरू कर दिया, क्योंकि कहते गांव में उनका सारा ज़मीन छीन लिया गया और उनके लिए कहते काम के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो सारे के सारे लोग जो थे शहरों की तरफ पलायन कर गए, क्योंकि शहर में बड़े बड़े कारखाने उद्योग स्थापित थे और उनको ये विश्वास था कि शायद उनके जीविका जो है वहाँ पर प्राप्त हो सके। इसलिए बहुत से लोग जो थे शहरों की तरफ पलायन कर गए और इवन आज भी देखने को मिलता है। लोग देखिए गांव से शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। कारण क्या है, गांव में अच्छा जो है व्यवस्था नहीं है उद्योग का, सारे उद्योग जो है शहरों में सिमट के रह गए हैं। जबकि सरकार को इस बात पे विचार करने की आवश्यकता है कि गांव में हम जितना हो सके हर गांव में एक उद्योग होना चाहिए, जहां पर आसपास रहने वाले व्यक्तियों को जो है भरपेट जो है रोटी प्राप्त हो सके। लेकिन सरकार इस चीज़ से कोई ऊपर ध्यान ही नहीं दे रही है। भारत तभी जो है तरक्की करेगा जब हमारा देश के जो है इकोनॉमिकल अर्थव्यवस्था बढ़ेगा, यहाँ पर हर एक नागरिक का जो है कंडीशन सुधरेगा। और कंडीशन तब सुधरेगा जब इनके लिए सही व्यवस्था किया जाएगा। अब देखिए वही लोग जो है गांव में न रह के शहरों में आते हैं और शहरों में इतने किराए होते हैं कि वो झुग्गी झोपड़ी बना के रहने लग जाती हैं। अब देखिए हम विश्व के सामने अपने देश को क्या प्रदर्शन करेंगे, क्या बताएंगे कि हमारे देश में झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, वो भी हम आधुनिक युग में आ चुके हैं। तो कारण क्या है, आम गरीबों का पलायन करके वो शहरों में आते हैं और शहरों में जो है उनके पास अच्छा खासा घर नहीं होता तो वो झुग्गी झोपड़ी बना के रहने लग जाते हैं। और झुग्गी झोपड़ी किसी भी देश के लिए प्रदर्शन करना संभव नहीं है और हमारी देश का ये गलत हो जाता है फिर। तो इसे सरकार को सोचना चाहिए कि जितना हो सके फैक्ट्री को गांव में स्थापित करे, जिससे वहाँ के लोग जो है पलायन जो है शहरों की तरफ ना करें और ये पलायन की जो स्थिति है वो अभी सिमट कर रह जाए, रुक जाए। तब जो है हमारा भारत देश बहुत प्रगति करेगी, बहुत तरक्की करेगी और ये विकसित बन सकती है और ये ज़रूरी भी है। इसने कारखानों में काम करने के लिए सस्ते और अधिक मजदूर प्रदान किए, क्योंकि शहरों में सब पलायन कर जाते थे, अब वहाँ पर काम करने के लिए भी होड़ लग जाती थी। कहते हैं एक काम करने के लिए जो है 3-3 4-4 व्यक्ति जो थे अप्लीकेबल थे। तो आपको जनरली सी बात है कि जब एक काम के लिए 5 बंदे तैयार हैं तो आपको पता है कि वही व्यक्ति काम करेगा जिसके पास स्किल भी हो और प्लस जो है उसके पास वो बेच भी कम लेता हो। तो ऐसा ही हुआ और इससे गरीबी बढ़ता ही चला जाएगा। इंग्लैंड में अनुकूल राजनीतिक परिस्थितियों ने भी औद्योगिक क्रांति के विकास में काफ़ी मदद दिया, क्योंकि इंग्लैंड उस समय अनुकूल परिस्थिति में थी, इसलिए औद्योगिक क्रांति होना स्वाभाविक था। व्यापारिक प्रतिबंध हटाने जैसे टैक्स अधिनियम और सामूहिक जो है बाजार व्यापारियों के लिए अनुदान था। तो क्योंकि कहते हैं टैक्स अधिनियम काफ़ी महत्वपूर्ण थी और इंग्लैंड मुख्य रूप से अपने परिवहन में विकास के कारण विदेशी बाज़ारों पर कब्जा करने में सक्षम था। यानी इंग्लैंड मुख्य रूप से अपने परिवहन में विकास के कारण विदेशी बाज़ारों पर कब्जा करने में पूरी तरह से सक्षम था। और कई यूरोपीय देशों ने अब जो है वर्जनवाद की नीति को पालन शुरू कर दिया और इस नीति के तहत उद्योग और व्यापार में सरकारी नियंत्रण प्रयोग किए गया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी कि उद्योगों और व्यापारों में सरकारी नियंत्रण काफ़ी बढ़ गई और यह सिद्धांत है कि इस पर आधारित कि राष्ट्रीय शक्ति अधिक निर्यात और कम आयात की ओर संकेत देता है। देखिए सिद्धांत होता है, ऐसे देशों में देखा जाए तो राष्ट्रीय शक्ति जो है अधिक निर्यात करती है और कम आयात करती है, तो इससे जो है उसकी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत भी बनती है। और यह सिद्धांत इस पर भी विश्वास करता है कि एक राष्ट्र की संपत्ति का स्वामित्व उसके सोने और चांदी पर निर्भर करता है। अब देखिए ये भी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आपको पता है कोई भी देश जो है ऑटोमेटिक अपने पैसा नहीं छाप सकता, अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता है जब तक जो है विश्व बैंक को गोल्ड शो नहीं करेगा।
तो आपको पता है गोल्ड कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। तभी तो यहाँ पर बात आया है कि कोई एक राष्ट्र की संपत्ति का स्वामित्व उसके सोने और चांदी पर निर्भर करता है कि उसके पास कितने सोने हैं और कितने चांदी है। तथा सरकार का व्यापार में हस्तक्षेप इसमें सम्मिलित होना चाहिए। इसमें जो है सरकार भी व्यापार में हस्तक्षेप कर सकती है। अब देखा जाए तो वो क्या कारण थे जिन्होंने इंग्लैंड के औद्योगिक क्रांति वाला पहला देश जो है बनाना संभव किया। कोई कारण रहा होगा जिसके कारण इंग्लैंड जो है औद्योगिक क्रांति में पहला देश बना। इंग्लैंड के अन्य देशों से अधिक भौगोलिक लाभ और भरपूर उपयोग किया गया। इंग्लैंड वालों ने हर संगम जो है अपने देश का जो है भौगोलिक लाभ उठाया और भरपूर उपयोग भी किया। कहते हैं सुरक्षित स्थानों के साथ साथ यह द्वीप समुद्र तट के जो है नज़दीक है। अब देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये बात रखता है कि कोई भी देश के लिए ये महत्वपूर्ण रखता है कि वो समुद्री तट के नज़दीक हो। और देखा जाए तो इसमें भारत सबसे अग्रणीय है। भारत का तो आधे से अधिक क्षेत्र जो है समुद्र तट से ही स्थित है, परंतु इसने यूरोप के अन्य देशों को अलग होकर निर्बाध प्रगति की और जलमार्ग जैसे नहरों, नदियाँ, समुद्र ने इंग्लैंड के बिना कर और रुकावट के विशाल मुक्त व्यापार क्षेत्र प्रदान किया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी कि उनके लिए जलमार्ग एक वरदान सिद्ध हो गया और नहरों, नदियाँ, समुद्र ने इंग्लैंड के बिना कोई रुकावट, बिना कोई टैक्स, सब चीज़ व्यापार मुक्त प्रदान किया, जिसकी वजह से ये जो है सभी देशों में पहला देश बन गया औद्योगिक क्रांति में। और इस सभी लाभों में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के लिए उचित स्थिति तैयार कर दी। यानी देखा जाए तो इतना अच्छा कंडीशन होते हुए जो है ये पूरा प्रगति की, अपनी चरम सीमा पर पहुंची। भारत में सारे कंडीशन हैं, लेकिन भारत में बात है कि यहाँ पर नीतियाँ जो है सही से लागू नहीं की जाती है। यहाँ पर तो सिर्फ एक ही बात पे ध्यान दिया जाता है कि इलेक्शन में कैसे जीते, कैसे इलेक्शन में हम अपना जो है दबदबा बनाए रखें, कैसे हम अपना कुर्सी बचा लें। यही भारत की सबसे बड़ी पहचान है यहाँ के राजनीतिक क्षेत्र का। लेकिन कहते हैं भारत इतना विकसित देश है, इतना कहते हैं अग्रणीय है, यहाँ की जनसंख्या भी बहुत अधिक है, हम मैन पावर अधिक हो चुका है, फिर भी हमारा देश विकास नहीं कर रहा है। तो रीजन्स यही है, एक करना चाहता है तो दूसरा टांग अड़ाता है, जर्नल सी बात है। और इसी से प्रगति नहीं होती है हमारी देश की। कहते हैं सबको मिल के करना पड़ेगा देश को प्रगति। जैसे अगर आप त्रिपाठी सेंटर को आगे बढ़ाना चाहते हो, आगे अगर आप इसको और भी एस्टेब्लिश करना चाहते हो, और भी आप चाहते हो कि हर एक क्लास का वीडियो इसमें रहे, हर चीज़ रहे इसमें उपलब्ध, क्वेश्चन आंसर MCQ सभी रहे, तो इसके लिए आपको भी तो कोशिश करना पड़ेगा ना। और कोशिश करने के लिए आपको पता है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। जितने बच्चे से जुड़ेंगे त्रिपाठी स्टडी सेंटर के साथ, उतना जो है त्रिपाठी स्टडी सेंटर विस्तृत होगा। और इसमें आपका सहयोग चाहिए। कहते हैं अगर देश की भलाई करना है तो कहीं ना कहीं शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। और त्रिपाठी सेंटर ने एजुकेशन के रास्ता को अपनाया है, क्योंकि हमें पता है कि जो कहते हैं विकास का जो रास्ता जाता है वो एजुकेशन के साथ होके जाता है। जब तक भारत के बच्चे अधिक सक्षम, समझदार और काफ़ी पावरफुल नहीं बनेंगे, संभवतः है कि भारत का देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। और इसके लिए पढ़े लिखे समझदार व्यक्तियों की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहता कि हमारे देश में पढ़े लिखे की कमी है, हमारे देश में बहुत डिग्रियाँ बांटी जाती है, लेकिन फिर भी हमारा देश विकास क्यों नहीं कर रहा है। सारे देश देखिए हमसे 100 साल पीछे जो हुए, स्वतंत्र हुए, लेकिन वो विकसित बन गए और हम पिछड़े के पिछड़े रह गए। हमने यहाँ पढ़ा ना, अमेरिका भी गुलाम बना, फ्रांस, जर्मनी, हर एक देश गुलाम बना, और देखिए वो सब विकसित और पावरफुल बन गया। हम भी गुलाम बना, हमारे देश भी बना, लेकिन हम क्यों नहीं आगे बढ़ पाए। सबसे बड़ा यही बात है कि यहाँ पर सरकार का भी यही सोच है कि अगर भारत में व्यक्ति जो होंगे अनपढ़ रहेंगे तभी उनको जो है बिना सोचे समझे वोट देंगे। तभी तो देखिए एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया गया है, हर जगह सिस्टम बदल दिया गया है। देखिए सिस्टम बदला ही हुआ आपको नज़र आएगा हर क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई हो कहीं भी हो। टीचर क्लास में होते नहीं हैं। सरकारी स्कूल में जाकर देखिए अगर टीचर छुट्टी पे है तो बच्चों को भी छुट्टी करके भगा देते हैं, जाओ बच्चों आज आपके टीचर आए नहीं, आप घर पे जाकर आराम फरमाना। तो ये कहाँ का सिस्टम है, ये एजुकेशन का है ही नहीं अच्छा सिस्टम। तो यही बात त्रिपाठी सेंटर कहता है कि ज्ञान प्राप्त करो अच्छी तरह से, अधूरा जानकारी खतरनाक होता है। ठीक है, अगर आपको इस चैनल को आगे बढ़ाना है तो कोशिश आपको करना है। मुझे तो जो करना था मैंने कर दिया, लेकिन करना आपको है। करना इतना सा है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना।